फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suramya Kaushik. Well, the number 4 problem in Team India looks like a mathematical sum which doesn't have a solid solution. And here we are in an attempt to find out the solutions for this problem. And for that, I know some really great cricket experts will help me. And for that, I have with me Chetan Narula, Jamie Alder, and Taus Rizvi. Let's find out the solution for this number 4 problem. Jamie, we have been talking about this problem from I think past 1 week or so. Not even a week, I think from past 1 month. I want to know from you what's the ideal solution for this problem. पास्ट वीक आई थिंक पास्ट काफी साल से हम लोग इस नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। हमें तो 11 साल हो गए। हाँ भाई, मतलब see look, how do we even start? Look, we, at the risk of repeating myself and even repeating what people like Taus Bhai and Chetan have been saying a long time, India are here for their own mistakes, their own lack of foresight, and of course injuries to KL Rahul and Jasprit Bumrah. हम नंबर 4 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं right now because these two are not there. In a perfect scenario, KL Rahul नंबर 5 पे बैटिंग करते based on fantastic stats, और नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर वहां होते based on fantastic starts. वो नहीं है. We know why they're not here. The fact that अभी हम सुन रहे हैं कि 3 दिन और लगेंगे इस सिलेक्शन कमिटी को, टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आएंगे या नहीं, इट्स प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू डिड नॉट इन्विजन दिस सिनेरियो पैनिंग आउट, राइट? चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन नहीं आए तो आपका बैकअप प्लान क्या था? अगर आपका बैकअप प्लान ईशान किशन था तो फिर उनको 2 T20 आई के बाद 3 मैच के लिए बाहर क्यों किया? अगर आपका बैकअप प्लान संजू सैमसन था, फिर तो लेट्स ऑल फेस इट, इट वाज अ फ्लॉड प्लान, राइट? आपकी थिंकिंग क्या सिर्फ ये थी कि भैया कहीं ना कहीं अगस्त के बीच में या मैक्सिमम सितंबर सेकंड वीक तक ये दोनों आ जाएंगे? इट्स रॉन्ग थिंकिंग. यू कैन नॉट पुट, अगेन इट्स नॉट इवन एनी एग्स, इट्स जस्ट 2 eggs गोइंग इनटू अ बास्केट, और ये सोचे कि भाई ये वापस आएंगे फॉर रीजंस डिस्कस्ड टाइम एंड टाइम अगेन ऑन दी शोज. केएल राहुल will play. I mean, will means the team wants him to play as a keeper batsman. That itself is flawed. जिस इंसान ने इतने समय से कीपिंग नहीं किया, फिर इंजर्ड हो गए, you logically expect him to come back, bat at 4, shepherd that pressure, have people bat around him, and keep wicket. If so, God bless you, you're in the wrong job. दूसरी बात, like Chetan's been saying for a long time, श्रेयस अय्यर फील्डिंग कहाँ करते हैं? थर्ड मैन पे नहीं करते ना, फाइन लेग पे नहीं करते. मोहम्मद शामी नहीं है. He's going to be in a very vital place. So yes, we all want them to come back. We all want them to win the World Cup. But if they don't make it, आपके बैकअप ऑप्शंस कौन है? हम वही इसी मुद्दे को लेकर खड़े हैं कि 4 कौन है, 5 कौन है. It's just, I think largely it's a self-inflicted problem, Suramya, and I'm sure Taus and Chetan will take the discussion further with similar responses. Absolutely. Taus, I want to know from you, when Jamie was talking about KL Rahul, and we also have Ravi Shastri's quotes out here. Ravi Shastri said that, it won't be wise enough to take KL Rahul for the Asia Cup because you can't expect him to bat in his finest of form because he was dealing with injury. What do you have to say about it? Do you think that Ravi Shastri made a lot of sense when he said that KL Rahul should not be there in the Asia Cup squad? See, unfortunately, we have to treat this Asia Cup as a practice platform or preparations for the World Cup. अभी तक तो आपकी टीम तो तैयार हो जानी चाहिए थी. In fact, अभी this Asia Cup is going to be about who are your backups because your front runners are not there. तो यहाँ पर जितना जिसको हो सके मौका दे. I mean, you have to give opportunities to guys like, I mean, since we don't have players, I mean, शुरुआत करेंगे अगर top order से, you have no फिक्स्ड ओपनर्स राइट नाउ. रोहित शर्मा का, विराट कोहली का खुद ऊपर नीचे हो रहा है कि शास्त्री asked if विराट कैन प्ले एट नंबर 4. तो यहाँ पर आपका पूरा बैलेंस खराब हो रहा है, खराब होते हुए दिख रहा है. तो आई मीन अनलेस ही इज कंप्लीटली अनफिट या फिट नहीं है, वो खेल नहीं सकते, तो केएल राहुल, आई मीन इट वोंट बी a bad decision to take him to Asia Cup, or maybe Shreyas Iyer. I mean, they have not been completely ruled out, or have they been?
So taking chances because you haven't prepared for the last 1 year. You did not pick up your backup options from in the last 1 year. You have these kind of problems, and we are just like 2 months away from the World Cup. So these issues cropping up at this time is really silly. And I mean, we don't have settled openers. Then initially I've already said, हमारी चेतन भाई से भी बात हुई थी पहले हमने, मैं सोचा था रोहित शर्मा को नीचे कर देंगे 4 नंबर पे और वहां पर ईशान किशन को ओपन कराएंगे शुभमन गिल के साथ. यहाँ पर रवि शास्त्री हैज कम आउट विद समथिंग डिफरेंट. So I mean, everybody will have their own opinions, but I think this is the Asia Cup where forget about winning right now. यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन फिट कराना है वर्ल्ड कप जीतने के लिए. तो आपको एशिया कप जीते या नहीं जीते कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए. आपको कॉम्बिनेशन सेट करके कि आपका क्या बैलेंस है. एशिया कप फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया सीरीज फॉलोड बाय द वर्ल्ड कप. This is where we have to look at the World Cup finals, and if we are going to win the World Cup final. So begin your preparations from your Island series. भूल जाइए वो just preparations to actually to watch Jasprit Bumrah. What is he doing? How is he shaping up? But here for batters, KL Rahul, Shreyas Iyer, Virat Kohli, Rohit Sharma, कौन कहाँ बैठता है, ईशान किशन और मे बी शुभमन गिल कौन कहाँ बैठता है. एशिया कप is the place to start your preparation. Find the perfect combination and perfect balance from here. Forget about winning Asia Cup right now. ऑलरेडी इट्स टू लेट ना ताउस. हम लोग इतने दिनों से यही बात कर रहे हैं कि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है जब आप अपने कॉम्बिनेशंस बनाने का सोच रहे हो. ये राइट टाइम है एशिया कप का जहां पर आपको अपने कॉम्बिनेशन सेट करने हैं और फिर आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है. चेतन, यहाँ पर बात हो चुकी केएल राहुल की, श्रेयस अय्यर के बारे में भी बात हुई है नंबर 4 पर. रवि शास्त्री कह रहे हैं कि वो 2019 में चाहते थे विराट कोहली नंबर 4 पर खेले और उन्हें लगता है कि विराट कोहली अगर 4 पर खेलेंगे तो वो जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा और सॉलिड हो सकता है. व्हाट आर योर थॉट्स इन इट? डू यू थिंक ऐसा भी कुछ ट्राई आउट किया जा सकता है? ट्राई करने को तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है. बट विल दैट वर्क? पहले 2019 की बात करते हैं. 2019 मे बी इट कुड हैव वर्कड क्योंकि आपके पास शिखर धवन और रोहित शर्मा जैसे ओपनर्स थे. आपका टॉप 3 जो था वो बहुत हैवी था. उसमें से अगर आप विराट कोहली को नंबर 4 पे मूव करते, नंबर 3 पे आप किसी यंगस्टर को मूव करते, जैसे समझ लो ऋषभ पंत को मूव करते या किसी और बल्लेबाज को मूव करते, तो वो इन अ वे वर्क कर सकता था. विराट कोहली वाज इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वाज इन अ डिफरेंट फेज ऑफ हिज लाइफ. पर्सनली आई ऑलवेज थॉट कि एमएस धोनी शुड हैव बैटेड एट नंबर 4 इन 2019, बट एमएस धोनी बीइंग एमएस धोनी, उन्होंने 5 और 6 के ऊपर उन्होंने सोचना बंद कर दिया था. आज के सिनेरियो में लेट्स सी कि क्या सिनेरियोज हैं इंडिया के पास. ईशान किशन नंबर 4 पर वो होगा नहीं. शुभमन गिल या रोहित शर्मा नंबर 4 पर आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. संजू सैमसन नंबर 4 पर, सॉरी तौबा. उसके अलावा तिलक वर्मा एट नंबर 4 है. सो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया. It's probably a better idea than Tilak Verma at number 4. But यहाँ पे दो तीन reasons हैं जिसकी वजह से it is not a great idea. पहली बात, आप sample size देखो. 210 innings third position पे, 39 innings at fourth position. वो 39 innings at fourth position, पहली बात, majority of them came in 10, 11, 12. उस time period में, जहाँ पे where he was a youngster and he was looking to make a mark. And those 1, 2, 3 slots were already filled up. Okay. And then 2011 World Cup में he was obviously batting at 4 क्योंकि वो top 3 तो भरे पड़े थे ना हमारे. And then बीच में I think 2015-16 में उनका थोड़ा सा slump आया था. For 7-8 matches he had not scored 100, so he got down to number 4 and he scored 100. कोटला पे ही उन्होंने 100 बनाया था. I was there at that game. And he was smiling कि अब मेरे को नंबर 4 पे ना बैटिंग करा दे. पोस्ट मैच में he was saying that कि मेरे को अब नंबर 4 पे ना करा दे. I would like to go back to my number 3. So इतनी, because he's been a fabulous player and he was in a fabulous touch, fabulous form, fabulous mindset, तो वो sample size जो है, that is in a way what? It's not even 1/3, you know. It's 1/7 of the overall number 3 का sample size in comparison. So, as a great player, he will not fail at that position. But now the second thought comes here. He is your best batsman going into this World Cup.
और probably one of the two best batsmen. मैं ये नहीं कह सकता कि इस टाइम पे on current form रोहित शर्मा बेटर है या विराट कोहली बेटर है. But these two are your best batsmen going into the World Cup. और इनके ऊपर ही हमारी सारी उम्मीदें हैं. तो आपके टॉप 2 में से आप एक बैट्समैन को नंबर 4 पर करा रहे हो और नंबर 4 इज अ वेरी रिएक्शनरी पोजीशन. आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करके खेलते हो. आपके टॉप 3 ने क्या किया या आपके ऑपोजिशन ने उस टॉप 3 के साथ क्या किया. ठीक है, आपके टॉप 3 ने रन बनाए तो आप 200 for 1 पर बैटिंग करने आ रहे हो. सॉरी, 200 for 2 पर बैटिंग करने आ रहे हो. ठीक है, या फिर 20 for 2 पे बैटिंग करने आ रहे हो. सो यू आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन. आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशन बना नहीं सकते. आई थिंक विराट कोहली इज अ प्लेयर जो सिचुएशन बनाते हैं. मैं नहीं कह रहा कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बेस्ट प्लेयर पे एक रिएक्शनरी पोजीशन पे खिलाकर एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहे हो, व्हिच आई डोंट थिंक इज राइट. एंड इफ ही बैट्स एट नंबर 4 देन रोहित हैज टू बैट एट नंबर 3 और शुभमन गिल हैज टू बैट एट नंबर 3. ये मेरा थर्ड पॉइंट है कि आप अपना जो टॉप ऑर्डर आपका स्ट्रांग है, जो 2019 तक आपकी स्ट्रेंथ था, आप अब उस टॉप ऑर्डर को भी मेकशिफ्ट पोजीशंस की वजह से वीक कर रहे हो. सो it is not the worst idea, like I said, कि तिलक वर्मा at number 4 से slightly better idea मैं कहूँगा. But उसको घुमाने के लिए ये वो करना पड़ेगा उस चक्कर में. And so you don't think that Tilak Verma at number 4 will be a great idea? Now I do. Okay, now you do. Now I do. Okay. Now I do. I mean, I would rather have. Yeah. इस पे बात आ गई है, JB will agree. अगर ये नौबत आ गई है कि हमें विराट कोहली को नंबर 4 पे कराना है, भैया मैं तिलक वर्मा को नंबर. Tilak Verma's option will be better. Yeah. Let's hear it from Jamie. Let's hear it out from Jamie, because Jamie, I remember yesterday you were talking about Tilak Verma and we had a great discussion around कि तिलक वर्मा को कैसे लेकर जा सकते हैं हम वर्ल्ड कप में. अब अगर वो आते हैं तो नंबर 4 के लिए आपको क्या लगता है कि ये एक बेटर आइडिया रहेगा? See, every day, unfortunately, Suramiya, with this Indian team and specifically the statements starting from Rohit Sharma, जब वो कैप्टन थे, फिर T20 आईज में हार्दिक पांड्या और उस बीच राहुल द्रविड़ कुछ बोलते हैं. So we often end up in these discussion points because they've said something banal, right? अब देखो, अगर रवि शास्त्री ये नहीं कहते कि कोहली को 4 पे खिलाओ, तो we wouldn't be having this discussion, right? It's because we all know it's a bad idea. That's why we ourselves have never brought this up once in the last 6 months of talking, right? अब रवि शास्त्री ने बोल दिया, I'm on the same page. I could not put it any better than Chetan said. Right now, Tilak Verma, as compared to yesterday, it does seem like a better option, right? आप आंकड़े लगा सकते हैं कि विराट ने 57 के एवरेज से यहाँ खेला है, but the point is, we've seen too many times कि आप थोड़ा कुछ हिलाते हो ना जहां पे हिलाने की जरूरत नहीं है, एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस, राइट? चेतन ने सेड कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में अभी वनडे फॉर्म में इतना अंतर नहीं है. रोहित शर्मा went through a long slump, but then he got 100, he got 80 odd in back in January, right? So it's almost on even keel when you're talking about Rohit Sharma batting in ODIs right now and Virat Kohli right now. I'm not saying that's great batting, it's still average batting. तो average को अगर पूर आप कर सकते हो तो why would you want to do that? Let Rohit Sharma bat. I don't know when he's last batted at 3. I don't know when he's last batted at 4. I do know कि वो रोहित शर्मा the one day captain बने हैं opening के तौर पे, 3 double century. I do know that Virat Kohli to my mind has become the finest number 3, the finest chaser of his time, batting at a certain pace. आप क्यों उसको बदलना चाहेंगे? I don't want to go there. Of course, a 3 can bat 4. Tomorrow you tell Virat Kohli bat 6. He'll come and do something because it's Virat Kohli, right? But I would still go for a top heavy. And frankly, is it top heavy? Shubman Gill is misfiring every second innings. So you have a person who was in prime form coming in, coming out of the IPL. अब वो तीनों फॉर्मेट में नहीं चल रहे. So that's a problem area. I will still say, क्योंकि वो ओपनर है, इनसे ओपनिंग कराइए. Do not ship Virat Kohli, despite the fact that he's got 700s, 500s. I think the stats were 5/9, जो भी था. आंकड़े इनके हर जगह अच्छे होंगे. But just not for any logic, not for anything that any of us here are saying, just because sometimes we've seen आप कुछ चेंज करते हो और बाकी सारे जिगसॉ पीस के पजल्स भी बिखर जाते हैं. My logic is simple as that. Don't do it. रही बात तिलक वर्मा की, I'll say it again. There's nothing to suggest that the guy cannot walk in and do a damn good job. But he's just 20. He's played 5 matches.
Oh, most 3 of them he worked. Chaliye, one I'll say he had no option. 7 not out. Let's say 4 final match, but he's going to struggle. It's not about taking a punt on him. It's about the people who've been doing that job, or I can say you've been punting on. Unko ek taraf abhi side karna. I think that's really problematic. And actually, yes, Chetan. No, go on. No, I was just saying the same thing. क्योंकि आप तिलक वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो उनकी एज को लेकर है, क्योंकि काफी ज्यादा बातचीत चल रही है. He's just 20, and people are saying that experience matters, and especially in a tournament like World Cup, you really want to have players who have experience. Yes, Chetan, what do you have to say about that experience front as well? No, I had the whole weekend to think about it, और हमारे को 2 मैच भी मिले, T20 मैच देखने को भी मिले. See, experience matters, yes, there's no doubt about it. और मैंने पिछले हफ्ते ही शो पे कहा है कि experience matters. I am not completely in favor of this move. लेकिन अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को आप हिलाने लग रहे हो उनकी पोजीशन से जहां पे वो डोमिनेट कर सकते हैं, then I would say कि आप rather play Tilak Verma at number 4, because that's a more Absolutely. it's not Sanju Samson at number 4 से worst idea नहीं हो सकता है, तो it's not worse than that, right? Now I'll tell you why Tilak Verma at number 4 actually makes a little bit of sense if you think about it. First of all, he's a left-hander. Yeah. Irrespective of आप बाकी 2 लेफ्ट-हैंडर्स को छोड़ दो, जो शास्त्री ने कहा है उसको छोड़ दो, नंबर 4 पे यू हैव अ लेफ्ट-हैंडर. आज ऋषभ पंत फिट होते तो वो इस पोजीशन पे बैटिंग कर रहे होते. ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग ही इज अ लेफ्ट-हैंडर. दूसरी चीज, अभी तक बहुत छोटा सैंपल साइज है, चाहे आप आईपीएल के 2 सीजन उठा लो अभी तक, और ये 5 T20 उठा लो. Remind me when he has thrown his wicket away. And मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? मैं संजू सैमसन से कंपेयर कर रहा हूं. वो सनक कब दिखी है इनमें कि यार मैं 4 छक्के मार चुका हूं, मुझे 5वां भी मारना है. So what I'm saying is, it's a small sample size. 2 IPL. उस हिसाब से सेंसिबल प्लेयर है, कह सकते हैं. Sensible shot selection, sensible situation. और मैं इसीलिए ये सैंपल साइज मान रहा हूं क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए ही इज बैटेड एट 3, ही इज बैटेड एट 4 एंड ही इज बैटेड एट 5 अक्रॉस 2 सीजंस. एंड इन आईपीएल 3, 4, 5 में यू एनकाउंटर वेरियस सिचुएशंस अक्रॉस 2 आईपीएल सीजन, अक्रॉस 28 लीग मैचेस, और उसमें मुंबई की अच्छे से पेली गई है उन 2 सीजंस में. He encountered a variety of situations. कहाँ पे उनको कभी जल्दी विकेट गिर गए, टॉप 3 आउट हो गए, नंबर 5 पे उनको आगे खड़े रहना पड़ा, तब रन बना दिए. नंबर 3 पर एंकरिंग करनी पड़ी, तब रन बना दिए. 4 पर फिनिशिंग करनी पड़ी, तब रन बना दिए. 5 पे फिनिशिंग करनी पड़ी, तब रन बना दिए. 3 पर लंबी इनिंग खेल के फिनिशिंग करनी पड़ी, तब रन बना दिए. So he's been through a variety of situations and he's never let you down. I'm not saying कि उन्होंने हमेशा रन बनाए, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है. But he's never let you down with his temperament. कि इस सिचुएशन में ये करना चाहिए था और उसने जबरदस्ती शॉट मार के, हो सकता है शॉट मारते मारते आउट हो गया हो, क्योंकि वो T20 का नेचर है, दैट इज द नेचर ऑफ T20 क्रिकेट. लेकिन वो सनक नहीं है कि मुझे छक्का मारना है और इंप्रेशन जमाना है और ये दिखाना है और वो दिखाना है. नाउ ये 2 चीजें, एक लेफ्ट हैंडर और बिकॉज जितना भी उनको देखा गया है ही इज प्लेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो दिमाग है. अब वो प्रेशर झेलना एक्सपीरियंस से आता है, दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग. ठीक है, टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले दिन ही कंपेयर कर दिया था कि अहमदाबाद में 2011 में युवराज ने जो किया था, क्या वो तिलक कर सकते हैं? क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया को तो हराना ही पड़ेगा ना यार वर्ल्ड कप जीतने के लिए. इंग्लैंड को तो हराना ही पड़ेगा. इन प्रेशर डालने वाली टीमों के अगेंस्ट, इन क्रंच मैचेस, जब आपका टॉप ऑर्डर खत्म हो चुका है, जब आप सेमीफाइनल में टॉप ऑर्डर खत्म हो चुका है, देन कैन ही डू इट? वी डोंट नो. पिछले वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत नहीं कर पाए, एमएस धोनी नहीं कर पाए, दिनेश कार्तिक नहीं कर पाए, जिनको फिनिशर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पता नहीं क्या क्या उनको ताज पहनाए हुए थे, वो नहीं कर पाए. सो आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, बट दैट्स अ पंट वी विल हैव टू टेक. सो एब्सोल्युटली वी विल हैव टू सी दैट. मैं ये कहूंगा जस्ट वांट टू ऐड हियर, सुनने में ये आ रहा है कि एशिया कप की सिलेक्शन 20 तारीख को होनी है. 20 तारीख को भी आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट half the match will be passed. Second T20 है आयरलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद ही होगी सिलेक्शन. I am saying you take KL Rahul and you take Tilak Verma as well. KL Rahul doesn't play the Asia Cup until the second stage, depending on his fitness. लेकिन आपके पास 2 मैच हैं, पाकिस्तान,
Nepal. Use those two matches to see what Tilak Verma can do. नेपाल के अगेंस्ट तो उसको आप नंबर 3 पे बैटिंग करा दो, पता तो चले वो कर क्या सकता है ओडीआई में, and then make a calculated risk. Let us see, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी बैटिंग आएगी 4 पे. हाँ, makes a lot of sense there. Makes a lot of sense. ताउस से पूछ रहे थे यहाँ पे, ताउस what do you think? और ताउस यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी, केएल राहुल के बारे में बातचीत चल रही है, तो केएल राहुल की फिटनेस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे हैं. रवि शास्त्री ने कहा कि आप इतना रश करते हैं प्लेयर्स के साथ. वी हैव सीन व्हाट यू डिड विद जसप्रीत बुमराह. 1 साल से होने वाला है जब वो नहीं दिख रहे हैं मैचेस में. सो व्हाट डू यू थिंक? Do you second what Chetan said right now? Can we do this, taking KL Rahul and Tilak Verma together in Asia Cup and then take those calculated risks and then go ahead with who has to play for a particular match in that series? Why not? I just said, na, Asia Cup is your preparation. Unfortunately, where you have no, where you can't think of winning right now, rather than preparing for the World Cup. ये इंटरेस्टिंग ये है कि तिलक वर्मा at number 4 is it's a good comment over there. Taus, I want you to take that comment. I read an interesting comment. कुलदीप लिख रहे हैं कि एक इंग्लैंड की टीम है, हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर को छोड़ दिया. यहाँ पर हमारी टीम आधे से ज्यादा इंजर्ड प्लेयर्स पर भरोसा कर रही है. और बात सही है, आप बेट कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह पर, जो 1 साल के बाद अभी दिखेंगे आयरलैंड सीरीज में. उसके बाद आप देख रहे हैं केएल राहुल को, जिन्होंने इतने टाइम से नहीं खेला है. देन अगेन यू आर बेटिंग ऑन श्रेयस अय्यर, जिनका पता नहीं है कि वो मैच फिट है भी नहीं है. आपने बैकअप ही नहीं बनाया है. Exactly. So that's a very, very big problem, isn't it? Absolutely, it's a big problem. बैकअप ही नहीं बनाया आपने, तैयारी नहीं किया. 1 साल क्या किया आपने? और आपको मालूम है कि देखिए आईपीएल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर इंजरीज कहीं ना कहीं से तो आएंगी आपको, चाहे वो केएल राहुल के रूप में हो या उसके पहले. इतना क्योंकि आपका पैक कैलेंडर है, आपको बैकअप आप एक टाइम पे ABCD टीम्स बनाते हो, मगर आपका फर्स्ट ए के लिए ही प्लेयर्स नहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर. बट आई थिंक दिस इज अ गुड इंटरेस्टिंग ये कि दोनों को लेके जाना चाहिए, तिलक वर्मा एंड केएल राहुल. तिलक वर्मा हैज शोन इन T20 एग्जैक्टली व्हाट ही कैन डू, एंड स्पेशली लाइक T20 इज समथिंग लाइक आपके लास्ट के 10 ओवर्स में उनको या लास्ट के 15 ओवर्स में उनको मौका मिला, और जितनी बॉल उतनी पुरानी होती गई, तो एग्जैक्टली नंबर 4 वैसे ही आसपास आ जाता है, जो मिडिल ओवर्स के आसपास आ जाता है. वैसे ही तिलक वर्मा ने रिस्पॉन्ड किया टू द सिचुएशंस rose in West Indies, and exactly the kind of player, the left-hander that we have been looking for quite a long time. I mean, रविंद्र जडेजा छोड़ दियो, नंबर 4 चांस ही नहीं है. ईशान किशन नंबर 4 बीच में बैटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको क्लू नहीं है कैसे करना चाहिए, स्पिनर्स को कैसे खेलना चाहिए. तिलक वर्मा he may be 20, he may be a youngster, बाकी लोगों के सामने बच्चा हो, मगर he's got that head on his shoulders, he's got that skills, वो टेम्परामेंट गिफ्टेड है, उसको स्किल्स टेम्परामेंट गिफ्टेड है, उसके बाद शॉट्स सिलेक्शन गिफ्टेड दी. सो अगर आपके पास ऐसे गिफ्ट, ऐसा प्लेयर वंस इन आई मीन, युवराज भी टेम्परामेंटल थे, वो भी इतना वो अपने मेच्योर होते उनको अच्छा खासा टाइम लगा, फिर आते ही साथ मतलब उन्होंने बता दिया कि ही इज द नंबर 4. यहाँ पर आपको रेडीमेड प्लेयर मिल रहा है एट द एज ऑफ 20. So why not experiment with Tilak Verma? He's a beautiful player to watch. Time to him, isn't it? Because tinkering with Virat is like, अभी आपने स्टैट्स दिखाया है, सबसे ज्यादा रन्स उनके नंबर 3 पे है. Yeah. Now और रोहित शर्मा, I would have preferred रोहित शर्मा at number 4, क्योंकि मुझे ये भी देखना है भाई, मुझे ये भी देखना है कि रोहित शर्मा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एज एन ओपनर. क्योंकि अगर आपको ईशान किशन अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, शुभमन गिल अगर फॉर्म में आगे एशिया कप में इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन में आके खेलने लगे कि भाई एंजॉय कर रहे हैं, फिर आपके और रोहित परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना आपको. तो ऐसे बहुत सारे आने वाले, मगर फिलहाल के लिए ही इज गोइंग टू एशियन गेम्स राइट नाउ. अभी टीम में उनका नाम है तिलक वर्मा का, तो उनको जल्दी से नाम निकाल के एशिया कप पे डालना चाहिए और चेक करना चाहिए कि भाई केएल राहुल या तिलक वर्मा. Absolutely, everyone's waiting for that. और जेमी, आप अभी बात कर ही रहे थे कि 2-3 दिन और लगेंगे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस को चेक करने में, उसके बाद स्क्वाड अनाउंस होगा एशिया कप का. यहाँ पर जेमी, रवि शास्त्री ने तो अपनी एशिया कप की टीम बताई है, एंड उन्होंने कहा है केएल राहुल और अय्यर को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले आप उनकी कोई मैच प्रैक्टिस नहीं होगी. नेट्स में खेलना एक अलग चीज होती है, मैचेस में खेलना एक अलग चीज है. आई वांट टू नो फ्रॉम यू,
कितना ज्यादा एडवाइजेबल है इन दो प्लेयर्स को एशिया कप में लेकर जाना, क्योंकि आपको अगर वर्ल्ड कप में देखने हैं प्लेयर्स तो आपको एशिया कप में तो देखने पड़ेंगे ही ना कि वो कैसे खेल रहे हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों नहीं तो दोनों में से किसी एक को ले जाना कितना इंपॉर्टेंट है? Look, again, because the team has put so much importance on Shreyas Iyer, KL Rahul, and Jasprit Bumrah, that you have no option, right? Like I was saying earlier, अगर अब तक डिसीजन नहीं लिया गया और ये 3 दिन और मांग रहे हैं, टू मी इट्स वेरी क्लियर कि दोनों उतने फिट नहीं है जितना हम सब सोच रहे थे काफी टाइम से, ठीक है? नहीं तो आप 3 दिन क्यों मांगते हैं, राइट? बट द पॉइंट इज वट एवर इट इज, इफ यू आर नॉट टेकिंग देम, देन इट्स वेरी क्लियर कि ये अगले 2 महीने तक नहीं खेलेंगे, राइट? एशिया कप मतलब like Tosbai said, जीतना I don't think they're capable of winning it. That's just my view. Point is, आपको सारे मैच, ट्रेनिंग सेशंस, प्री मैच, पोस्ट मैच, आपको सारे अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाना पड़ेगा if your end goal is to get them into your squad. I think you have until September 28th to finalize, fine tune. सारे टीम्स क्या कर रहे हैं? वो 18 मेंबर के स्क्वाड नेम कर रहे हैं, जो कि 28 सितंबर तक 18 से 15 कर देंगे। आप भी यही करिए, आप एशिया कप में 18 भेज दो। आपको अर्शदीप को वहां से लाना है, वॉशिंग को लाना है, यू कैन डू इट। यू आर द बीसीसीआई। आई थिंक यस्टरडे श्री वाज सेइंग कि देखना हमारी टीम सबसे आखिरी में अनाउंस होगी। It's fine. Just because so and so is going to Ireland does not mean that they can fly early, right? And if, like Chetan is saying, that squad comes at 11 p.m. on the 20th, which is when the first 2 matches will be done, तो ठीक है, यहाँ पे possibilities आपके पास बहुत हैं, but it's because these 2 lovely guys on our screen have got injured and the progress has been much slower than expected. अभी आपके पास options नहीं है. There's no point talking about कि we've all said it कि भाई आपके पास मौका था for a plan B, plan C. आप उस plan B, plan C को नहीं बना पाए. That's your loss. But right now there is no debate. They have to go to the Asia Cup, whether they're 90% fit or 100% फिट, क्योंकि बाकी का 10% हो सके वो वहां पे आए, राइट? अगर आपने बजट किया है कि उनको 90 से 98 तक लाना है हाइपोथेटिकली, तो वो एनसीए में अब नहीं होगा। एनसीए का काम खत्म हो चुका है अब, बिकॉज यू माइट that final missing link in one guy's shot or knee or back or posture, it might click in the nets in Colombo या Hambantota, wherever they're playing in Sri Lanka, right? Dambulla, पता नहीं कहां खेल रहे हैं वो। But that chance has to be taken, हाँ। तो that chance has to be taken कि भाई वो जो final clue या क्यू या जो भी है वो श्रीलंका में आएगा, अब वो एनसीए में नहीं आएगा। भले आप इनको 72 आवर्स दे दें सुरम्या एनसीए में सब कुछ करने के लिए, but the final call has to be taken on match morning, on match। हमारे क्या 3:30 बजे के मैच है ना, हो सके आप 2:30 बजे वो कॉल ले, लेकिन वो कॉल लेने के लिए 2:30 बजे कोलंबो में या जहां भी हो, for that they have to be in the squad. So by all means pick them, throw Prasidh Krishna in, throw Sundar, but the call has to be taken in the Asia Cup, not before. Absolutely. Chetan, I think you are not in the terms with what Jamie said. Do you second that or you do? पहले तो मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि at this late stage we are still considering Prasidh Krishna. मुकेश कुमार will be like 3 debut क्यों कराए मेरे को? Much better option, I'll just add. No, I know that. But can you imagine at this late stage? Yeah. No, ideally, we should be discussing Prasidh Krishna at this stage. What will Sundar? Tell me about Ishan Kishan also. Sorry to use that language. Ishan Kishan as an opener also. यहाँ पे स्वैप 1 2 3 पूछ रहे हैं ये वाला सवाल कि ईशान किशन को ओपनिंग करवाओगे। रवि शास्त्री ने कहा कि अगर ईशान किशन को इतने चांसेस दिए तो फिर आप उनको अगर बाहर बैठा दोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप मैंने कितनी बार बोला है, दिस इज द स्टूपिड फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। बात सेंस किस बात का बन रहा है? दिस इज द स्टूपिड फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट। लुक, पहली बात तो रवि शास्त्री का, I'll come to Jamie's point. पहली बात तो रवि शास्त्री के स्क्वाड को मैं पढ़ रहा था, there is only 1 wicket keeper in the 15. बताओ। I know, I mean, I totally respect his, maybe he's just naming it, but you have to take 2 wicket keepers. Even if you're going to Sri Lanka, you have to take 2 wicket keepers. And I was actually looking at his squad कि भैया दूसरा कीपर कौन चुना है? He is so probably pissed with Sanju Samson कि उन्होंने अपने 15 में भी नहीं लिया। ठीक है, and he was sitting with 2 former selectors, chief of selectors. Sorry, what? I'm saying that KL Rahul को वो खिलाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि भाई मैच प्रैक्टिस ही नहीं तो खिला दिया। और कोई तो चाहिए। जाओगे ना 15 बनाओगे तो कीपर लेके जाओगे।
but he's not picked them, and he was sitting and doing a show with two former chief of selectors, Exactly, yeah. both of them who have been responsible for this fiasco at number 4 for the last 8 years. Yep. Yeah. Sandeep Patil and MSK Prasad. MSK एक के बाद Prasad, they were yeah. chief of selectors. Anyway, coming to Jamie's points, look, KL Rahul and Shreyas Iyer are not fit. Let's take this very very logically. Yeah. As per BCCI logic ही आप लेके चलो, क्योंकि the BCCI, you have to remember, will not share information until it's the last moment. Yep. उनका ये हाल है वही कि ट्रेन पटरी से छूटेगी उससे पहले ही चढ़ेंगे, उसके पहले नहीं चढ़ेंगे. ठीक है. सो उस हिसाब से अगर आप एक मिनट के लिए आप ऐड करके देखो, if they were completely fit, would they have announced it? Probably not. We don't know. But would they have asked for those 3 extra days? It's already late to announce the. People are announcing their reserve, not reserve. क्या word? I'm forgetting the word. Preliminary World Cup squads. Provisional squads. Yeah. Preliminary squad आ गया और उन्होंने Ben Stokes को retirement से ले आए हैं वापस. यहाँ पे हम लोग hospital से नहीं लेके आ पा रहे हैं अपने players को. ठीक है. So 3-4 extra days they are trying. जो उन्होंने match simulation में evaluate किया है, they are evaluating something else for sure. Or they want to see something in Ireland before naming the Asia Cup. There is one or the two things. Hopefully, they want to see something in the Asia Cup. In the Ireland series, not from their fitness. But if it is from their fitness, there is no way those guys are going to be fit for the World Cup. और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो उनकी injuries हुई थी, especially Shreyas Iyer. अनिक सरकार इज राइटिंग, उन्होंने कहा कि इंडिया में है तो जब दूसरा विकेट कीपर चाहिए होगा तो हम कभी भी इंडिया में नहीं है ना. मैं एशिया कप की बात कर रहा था. मैं एशिया कप की बात कर रहा था. एनीवे, हां, एशिया कप इंडिया में उसमें भी वीजा लगता है. कौन या जाने के लिए भी वीजा लगता है. एनीवे, माय पॉइंट इज दिस, सिंपल इज दैट, ही given Shreyas Iyer's injury, okay, he would not have played that match simulation at this point in August if the World Cup was not there. Yeah. Probably KL Rahul also would not have played. ये timeline नहीं है for an ACL or for a back injury, especially the stress factor. आप याद करो बुमराह का कब हुआ है? बुमराह was pre-IPL surgery. Yep. Both KL Rahul and Shreyas Iyer are post-IPL surgeries. Yes. Or the last week of IPL. जहाँ तक मुझे याद है post-IPL surgeries हैं दोनों की. Yeah, so you're looking at June first week surgeries and mid-August they are in match simulations. I'm not saying it's rushed. I'm just saying कि the rehabilitation, they are probably saying कि जो अगले 2 महीने हैं, we can use them for rehabilitation as well. Can we push them to a certain degree? Can they bat? Can they field? Are they having any pain? Is it good enough? Is their situation good enough कि अगले 2 महीने की rehabilitation करके, थोड़ा बहुत मैच सिमुलेशन करके, ऑस्ट्रेलिया के ODIs और वार्म अप गेम्स खेल के they'll be ready for the World Cup? ये हालत है आज इंडियन क्रिकेट की. एशिया कप, I doubt, maybe KL Rahul, maybe, but I really doubt Shreyas Iyer because and KL Rahul is also about Shreyas Iyer. KL Rahul is going to keep in the Asia Cup. No chance. I don't think so. बाकी यहाँ पर एक और चीज भी आती है ना, जब आप इन प्लेयर्स को एशिया कप में लेकर जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि दोबारा इंजरी हो सकती है, और अगर तब होती है तो उसके बाद तो आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, कोई चीज ही नहीं बचती है. सो यू नो देयर इज ऑलवेज दिस थिंग कि क्या हम लेकर जाएंगे क्या नहीं लेके जाएंगे. और जेमी और चेतन ने पहले भी बोला कि कैसे आपने 2-3 दिन एक्स्ट्रा लिए हैं और तब जाकर आप स्क्वाड अनाउंस करोगे. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्क्वाड में कौन कौन आते हैं. विद लास्ट रिमार्क ओवर हियर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जो ये सेकंड विकेट कीपर की बात आ रही थी, ईशान किशन के बारे में भी बात आ रही थी, व्हाट डू यू थिंक? 2 विकेट कीपर आपको चाहिए, सो केएल राहुल, ईशान किशन, दैट विल बी द बेस्ट वे टू गो अहेड विद. Absolutely, because Sanju Samson, yeah, you can't count in Sanju Samson. Even like if is half fit, KL Rahul is still better than Sanju Samson. The form that he was in West Indies, unfortunately, the way he threw away his wicket. KL Rahul is still recovering, and I mean, अभी जो positives थोड़ा बहुत तो दिख रहा है. यहाँ पर डिबेट तो इसलिए हुई कि रवि शास्त्री ने
आके अपना एक उन्होंने छोड़ एक दिया, अलग ही अपना अलग ही स्क्वाड एंगल छोड़ दिया। हाँ, वो डिबेट छेड़ने के लिए और हेडलाइंस में आने के लिए रवि शास्त्री है। बट रीजन देन मुझे दिस इज मालूम स्टिल, है, but नहीं बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं नहीं बता बोलेंगे। deserve that for another live session. Chetan, you श्रीनी have से to पूछो, श्रीनी को भी मालूम है, अगर श्रीनी बता देगा तो मैं भी बता दूंगा। Chetan, we won't let you go anywhere. In the next live session, we'll begin with this only. मरवाओगे You तो have to tell the चांस ही reason. नहीं, But yes, चांस ही I नहीं। think it makes a lot of sense, when Absolutely. KL Rahul and with KL Rahul and KL Rahul as a backup option. I mean, if he's not completely fit, क्या हाँ, करेंगे? आपने सिचुएशन वैसे ही क्रिएट किया है, तो अगर वो 99% भी है तो एशियन गेम, एशिया कप में तो जाना ही पड़ेगा। और ईशान किशन को आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज आई मीन किस तरह से बैट किया उन्होंने वेस्ट इंडीज में। सवाल अगला यही होने वाला है कि ओपन कौन करेगा। अभी तो नंबर 4 है, नंबर 4 तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा आते आते। नंबर ओपन कौन करेगा 12 यहाँ साल पर? हो गया, हाँ, 12 साल हो गया भाई। number 4 का वन, तो अभी ईशान किशन जी नंबर 3, अभी 3 है स्पॉट, 3 लोग हाँ हैं, एक और 2 सीट्स है वहां पर, कुर्सी है ओपनर्स के लिए, हाँ तो वो भी एक सवाल, अलग डिबेट है वो। बिल्कुल। और नंबर 4 के बारे में तो जेमी और चेतन पहले ही बोल रहे थे जब ये लाइव सेशन स्टार्ट हुआ कि एक हफ्ते से तो हम काफी अग्रेसिव तरीके से बातचीत कर रहे हैं, पर ये चर्चा तो पिछले 11-12 सालों से चल रही है। पर चलिए इस पर भी हम बात करेंगे कि ओपनर कौन होने चाहिए, बेस्ट फिट ओपनर्स कौन रहेंगे टीम इंडिया के लिए। वेल, वील गेट टू नो अबाउट अ लॉट मेनी थिंग्स ऑफ दिस टीम इंडिया व्हेन वील गेट टू सी द एशिया कप स्क्वाड perhaps on August 20th. Let's wait and watch what happens, and we have to gear up for the Ireland series as well because there'll be Jasprit Bumrah. Thank you so much, Chetan, Taus, and Jamie for joining with me, and thank you so much everyone for joining us in the live session. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।